Namaskar सभी को. Today we'll be discussing a very important, very significant judgment, and the judgment is by the Honorable High Court of Kerala at Ernakulam, and it has its unique citation number of 2023 colon KER colon 62820. Most of the people from the legal fraternity would be knowing this particular judgment, or even in case they are not aware about it, it would be provided in the description box, as well as they may get in contact with me, obviously, for obvious reasons if they require. It is in the public domain. It's a very prevalent, very significant, very renowned judgment, and the reason why I'm discussing this particular judgment is for the benefit of the fraternity, for benefit of my own self as well, and most importantly, the implications it has upon the common people, more particularly the people from the traders community. So even we had been getting this particular call, or rather, I would say that I had been getting calls from several people who are uh, managing their businesses, their professions at a very huge scale, at a very rampant scale, with the help of UPI, uh, also known as the Unified Payment Interface. सो हमने ऐसा देखा है कि काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं वो भी इसमें वेंचर इन कर चुके हैं. जैसे उनके खुद के भी अपने इंटरफेसेस हैं, जैसे HDFC बैंक का पेज ऐप है, ICICI बैंक का भी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज़ फिसर्व, SBI का योनो है, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, भीम ऐप इज़ देयर, गूगल पे इज़ देयर, ऑब्वियसली वन ऑफ द पाइनियर्स, पेटीएम इज़ देयर, फ़ोन पे है, फिर और भी बहुत सारे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, भारत पे एंड ऑल. सो इसमें इस पर्टिकुलर जजमेंट में होता ऐसा है कि देर आर एज मनी एज more than 25 petitioners who had approached the Honorable High Court of Kerala, uh, contending this particular fact that their respective bank accounts had been frozen, and they had been frozen because of the malicious or suspicious activity uh, which had been taking place in or around their bank accounts. So what happens basically, and how does this particular thing happens, कि मान लीजिए कभी मेरा कोई बैंक अकाउंट है और मैंने उसको अपने गूगल पे या पेटीएम वगैरह से लिंक करके रखा है, और मेरे पास कोई मान लीजिए 1 लाख रुपए कहीं से आते हैं, हालांकि वही अपर लिमिट है कॉमन नॉन करेंट अकाउंट बैलेंस होल्डर्स के लिए. फॉर इंस्टेंस 1 लाख का एक अमाउंट आता है मेरे पास, और उसको मॉनिटरिंग उसकी ऐसी होती है, या ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है कि पुलिस इस चीज़ को ये कहती है, जो ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस है, साइबर थाना के जो कार्यरत हैं, जो लोग जो होते हैं वो, या जो एम्प्लॉयज़, बेसिकली द पुलिस ऑफिशियल्स, they monitor it, and why do they monitor it? Because of the suspicious activity which they had detected, the system particularly, which they say that system detects some kind of malicious or suspicious activities in and around my particular bank account, following which they freeze that whole account. So consequently मेरा पेमेंट इंटरफेस तो अफेक्ट होता ही होता है, और साथ के साथ साथ मेरा बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है. तो मेरे पास बैंक की तरफ से भी एक मेरे पास इशूइंग लेटर आता है, और पुलिस भी, नेचुरली पुलिस मेरे को क्या कांटेक्ट करेगी, इफ़ आई एम द विक्टिम इन दिस पर्टिकुलर केस, विच द पुलिस स्टेट्स दैट आई एम पार्टी टू द एक्यूज्ड, और आई एम वन ऑफ द पार्टीज इन द एक्यूज्ड साइड. तो ये जजमेंट उसी चीज़ को एड्रेस करता है, or how it addresses, I'll provide the particular guidelines which are being provided in this particular judgment. तो इन सूरतों में या इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में हमको क्या करना चाहिए. In fact, this has happened with some of my fraternity members. This has been happening at a very huge scale with the advocates as well. Why? Because we seek money in our particular bank accounts, and consequently मेरा कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है मेरा बैंक अकाउंट सीज हो गया, या मान लीजिए मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा बैंक अकाउंट सीज हो गया. अब आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग हेयर इन दिल्ली NCR, और if required I have to visit across the nation as per the client's call. If the client is willing to pay and sponsor me to appear in Tamil Nadu, obviously I will not have any issues.
So we had been getting these calls through several consumers across the nation. Like I had been getting calls from Bihar, Tamil Nadu, in fact Delhi as well, कि उनका उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं और उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। कहाँ से फ्रीज हुआ है? 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जो है पता करके पता लगता है कि बैंक की तरफ से एक इशूइंग लेटर आता है, या बैंक में वो विजिट करते हैं तो उनको आया कि जी मेरे पास तो हरियाणा पुलिस ने मेरे को ये जो है ये एक एक डिक्टाट दिया है, एक एक ऑर्डर्स हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन यहाँ पे जनरेट हो जाता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मेरा बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज़ हो गया और अब इन सूरतों में मैं क्या करूँ? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं खुद ही यहाँ पे पीड़ित हूँ, तो मेरे को कैसे एक्यूज्ड बना दिया गया है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ऑब्वियसली एज समवन हैज़ राइटली सेड, वी नीड नॉट पैनिक। घबराना नहीं है, एक्चुअली घबराहट हो ही जाती है। तो उस घबराहट में कैसे, हाउ टू प्रोसीड अहेड बेसिकली। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको ये देखना है कि आपका बैंक अकाउंट कहीं नहीं जाने वाला है। योर मनी विल बी सेफ, बट it has got affected. People from the traders community or people who regularly deal in money finance, they know the value of money each and every successive day. इन्फ्लेशन का इफेक्ट उनको पता होता है। जो पैसा लोग कमा रहे होते हैं, जिनका धंधा, जिनका प्रोफेशन ये है कि एवरी डे दे हैव टू मेक मनी एंड मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंसेस, दे नो द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर entity, how necessary, whatever it is. So now not getting into that particular aspect, अब इसको कैसे, इसका रेजोल्यूशन क्या है बेसिकली? इसका रेजोल्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द जजमेंट इटसेल्फ विच हैज़ इट्स 4 गाइडलाइंस बेसिकली। अब परंतु इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस नहीं कर पाया है, या क्योंकि दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द लॉ इटसेल्फ। अगर मान लीजिए एक पूरा मैश है या एक पूरे क्लाउड में इंटरनेट पे ये इंटरफेस है ऐसा, जहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें ज़रूर हो रही हैं, और I'll constrain myself, I'll have a very blinkered approach in this particular video about how to resolve this particular issue, rather than आप अगर कहीं सही में एक्यूज हैं, आप अगर सही में कहीं एक्यूज हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिलिशियस या सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करी हैं, या बियॉन्ड द लॉ जाकर के आपने कुछ इस प्रकार का काम किया है, यू शुड बेटर गेट इन टच विद योर professional counsel rather than seeking assistance on Instagram reels or YouTube videos. You should better get in touch with your genuine counsel, जेन्युइन एडवोकेट। अगर आपको ऐसा लगता है इस प्रकार की एक्यूज्ड साइड को मैं यहाँ पे अभी एड्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, बट हैविंग सेड दैट, कि अगर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और मैं वहाँ पे विक्टिम हूँ बेसिकली, हाउ टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग टू द पुलिस? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट नीड नॉट पैनिक। Secondly, there is a cyber crime portal as well, cybercrime.gov.in. कभी कभी ये भी कंप्लेंट्स रहते हैं कि दे सेल्डम वर्क, बट यू हैव टू फॉलो इट, यू विल हैव टू फॉलो इट, एटलीस्ट इट गेट्स रजिस्टर्ड। Thirdly, you need to approach the jurisdictional थाना। मान लीजिए आप लाजपत नगर में रह रहे हैं या कहीं द्वारका में रह रहे हैं, तो आप अपने जो आपका क्षेत्राधिकार वाला थाना है, आप वहाँ पे अप्रोच करें, एसएचओ को अप्रोच करें, या आपको एक ड्यूटी ऑफिसर भी असाइन कर दिया जाएगा, या एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असाइन कर दिया जाएगा। मान लीजिए कहीं आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है कर्नाटक पुलिस के द्वारा, तो नेचुरली इट विल टेक इट्स ओन टाइम, the investigation in that particular regard will take its own time. Why I am saying this particular thing कि investigation क्यों होती है? क्योंकि ये जो फ्रीजिंग का जो, या फ्रीज करना या कंस्ट्रेंट कर देना उस अकाउंट को, वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेटिंग मोड का, या इन्वेस्टिगेशन या विवेचना का एक मोड है। तो पुलिस नेचुरली विल फॉलो दीज पर्टिकुलर स्टेप्स। उनको कोर्ट्स भी नहीं रोकेगी और नहीं रोक सकती, बिकॉज दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ इटसेल्फ। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप रेगुलरली, आपको पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट भी करना है, एंड यू नीड नॉट फियर दैट, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव नॉट डन समथिंग रॉन्ग, if there are certain suspicions, obviously you should get in touch with your advocate, and sorry, if required, if you feel that you require some advocate's assistance, जो proposition मैं अभी भी discuss कर रहा हूँ, तो there is no harm in getting in touch with your professional counsel. Fifthly,
ये गाइडलाइंस तो मैं अभी डिस्कस करूंगा ही। इन जजमेंट का नाम जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉपुलरली नोन एज द अब्दुल कलाम जजमेंट, एंड विच हैज़ इट्स यूनिक साइटेशन नंबर ऑफ 2023 colon KER colon 62820. This seems to be a very landmark judgment in my humble opinion because इससे पहले मैंने भी ये जजमेंट, अगर कमेंट में अगर और भी कोई एडवोकेट हैं या people from the judicial fraternity or anybody who is well aware about the laws which are taking place, or the laws which are being delivered across the nation, they know that prior to this particular judgment there is some judgment which mentions or addresses this kind of issue. Kindly provided in the comment box as well, and subsequent to it, if there is any judgment, they may also provide it by the apex court or any other court across the nation. सो इन्होंने यहाँ पे इस जजमेंट में ये बोला है कि अगर पूरा का पूरा अकाउंट ही अगर फ्रीज़ हो जाता है तो उससे ट्रेडर कम्युनिटी या जो कम्युनिटीज़ जो हैं या कोई भी या उनका लाइवलीहुड भी अफेक्ट होगा। तो ऐसा ना करें। किसी प्रकार से अगर इस प्रकार का ऐसे इस चीज़ को एड्रेस कर दिया जाता है कि वो जो क्वांटम ऑफ अमाउंट विच इज़ सस्पिशियस, या मान लीजिए कि जैसे 2 लाख रुपए आ गए अकाउंट में कहीं से, मान लीजिए करेंट अकाउंट्स के होते हैं और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस ऐसे जिनकी लिमिटेशंस होती है। ठीक है, किसी किसी के मान लीजिए बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, कोई करंट अकाउंट है या कोई बिजनेस अकाउंट इस प्रकार का हो, और वहाँ पे उसके पास अमाउंट आ जाता है किसी नेफ्ट के थ्रू, ट्रांसफ़र के थ्रू या किसी भी तरीके से, जो कि एक पेमेंट इंटरफेस हो गया या कोई स्कैनर के थ्रू आ गया कहीं पे, मान लीजिए 1 लाख रुपए का क्वांटम अमाउंट आ गया और वो पूरा अकाउंट ही फ्रीज़ हो जाए। तो ऐसा ना करें कि पूरा ही अकाउंट फ्रीज़ कर दें। इतना कर सकते हैं कि बैंक्स और पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके वो जो पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ अमाउंट है उसी को फ्रीज़ करें, उतना ही फ्रीज़ करें, और बाकी को जो जो अकाउंट है उसको चैनलाइज्ड रहने दें, उसको एक्टिविटी में रहने दें, उसको अनफ्रोज़न रहने दें। तो सबसे पहला तो यही गाइडलाइन है, विच आई मे ऑल्सो रीड इट आउट। द रिस्पोंडेंट बैंक्स अरेड इन दिस केसेस, लेट मी ब्रीफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट एज वेल, ऑब्वियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्रेटर्निटी। इसमें कम से कम नहीं तो 80+ से ज़्यादा जो है वो रिस्पोंडेंट्स को अरेंज किया गया था, जिसमें से यूनियन ऑफ इंडिया इज़ देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ देयर, SHOs ऑफ सेवरल पुलिस स्टेशंस, DGPs ऑफ सेवरल स्टेट्स, NCCP इज इन्वॉल्व, नेशनल साइबर क्राइम portal is there, NCRB was also there, and then many more other banks as well. सो ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि द रिस्पोंडेंट बैंक्स अरेड इन दिस केसेस are directed to confine the order of freeze against the accounts of the represented respective petitioners only to the extent of the amounts mentioned in the order requisition issued to them by the police authority. This shall be done forthwith, यानी तुरंत और immediately, so as to enable the petitioners to deal with their accounts and transact therein beyond that particular limit. The second guideline is the respondent police authorities concerned are hereby directed to inform the respective banks as to whether freezing of accounts of the petitioners in these writ petitions. The writ petition is titled is the nomenclature of that particular writ petition is civil number 12960 of 2023 connected with other matters. The connected matters are also there, like 12961 or several other writ petition numbers are there. So the police authorities are concerned are hereby directed to inform the respective banks as to whether freezing of accounts of the petitioners in these writ petitions will require to be continued even in the afore manner, and if so for what further time. यानी एक टाइम का भी फाउंडेशन यहाँ पे लगा दिया गया है पुलिस अथॉरिटीज़ के ऊपर और बैंक्स के ऊपर भी, कि उनको बताना होगा कि कितने समय तक और इस पर लिमिटेशन बनी रहेगी या फ्रोज़न मैनर में रहेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। यानी एक 8 महीने का एम्बार्गो लगा दिया गया है, एक टाइम लिमिटेशन लगा दी गई है। दो दिस इज़ डायरेक्टिव, दिस इज़ डायरेक्टरी इन नेचर, हाउएवर हाई कोर्ट का एक जजमेंट अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट करता है। हालांकि इसको प्रेसिडेंट नहीं कह सकते, इट विल डिपेंड अपॉन दी, दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन, इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी केस। लाइक ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो इट विल डेफिनेटली कन्फाइन इटसेल्फ to the contours of the state of Kerala. But having said that, since there are many respondents
like ranging from RBI, Union Bank of India, Union of India. There are many banks across the nation. So naturally, this will set as a kind of precedent also. So ये कोर्ट का एक अच्छा गाइडलाइनिंग जजमेंट है और इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शंस दी हुई हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हमारे फेवर में या कॉमन पीपल के फेवर में आ सकती है। नाउ पॉइंट इज़ ये तभी हुआ है जब कोई ना कोई अप्रोच किया है कोर्ट को, यानी दिस हैज़ कम थ्रू द ऑनरेबल कोर्ट ओनली। अगर ऐसा होता है कि हमारा अकाउंट ही फ्रीज़ हो जाए और यूपीआई गेटवे जो है वो पेमेंट इंटरफेस जो है वो भी फ्रीज़ हो जाए, तो उन सूरतों में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए अपने बैंक से कनेक्ट करके और यूपीआई को भी कनेक्ट करके आप ये पता करें कि किन सूरतों में या किस कारणवश वो फ्रीज़ हुआ है। Secondly, you can also lodge a complaint डिस्पाइट यू बीइंग अरेंड एज एन एक्यूज्ड। आप इस चीज़ को समझें कि आप कहीं ना कहीं एक्यूज्ड बनाए गए हैं, तभी आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट यू आर कंप्लीटली अनअवेयर या आपको जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट के ऊपर हुई है या आपके द्वारा हुई है। आपके द्वारा अगर हुई है तो ये वीडियो उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहा है, उसके लिए फिर दूसरा एक वीडियो बनेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ये इस प्रकार की घटना हो गई है और यू आर अ विक्टिम बेसिकली, सो दीज आर द फॉलोइंग रिकोर्सेज विच यू कैन फॉलो, या आप रेजोल्यूशंस आप इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। गेट इन द टच विद द एसएचओ, गेट इन द टच विद योर जुरिस्डिक्शनल थाना, complaint, lodge a complaint to the national cybercrime portal, irrespective of the fact that it might not work for all the time। 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप करें, कांटेक्ट करें। आप अपने पेमेंट इंटरफेस वाले को जो है, जैसे पेटीएम हो गया या पेज ऐप हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कभी कभी बैंक के द्वारा भी दिया जाता है, उनको भी कांटेक्ट करें। सेकेंडली, फिफ्थली, आप अपने बैंक को भी कांटेक्ट करें। You might also get in touch with your professional advocate in case if it is required। Obviously, the remunerative aspect would be taken care of by you only। एक तो आप वैसे ही परेशान हैं तो फिर उसके बाद जो है वो आपका कॉल बन जाता है। और सेवेंथली, गेट इन कंप्लीट कॉन्टैक्ट और कंटिन्यूएशन में आप जो है कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन बना के रखें पुलिस के साथ। और अगर आपको जब ये पता लग जाता है कि कौन सी पुलिस के साथ आपको आपने जो है जो फ्रीजिंग की जो एक्टिविटी है वो कौन से पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा की गई है, तो कहीं ना कहीं आप उनके डायरेक्शंस को या तो कंप्लाई करें या किसी ना किसी के थ्रू उनको आप लेजनिंग करने की कोशिश करें, या उनके जो कुछ डायरेक्शंस होंगे या उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें कि आप उनको ये समझाएं कि यहाँ पे आपका कोई भी रोल नहीं है। और ये भले ही अलग अलग लेवल्स में आता है, जैसे कई बार मैश जो होता है या पूरा जो एक इंटरनेट सस्पिशियस एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए मैं एक एक्यूज हूँ और मैंने किसी के अकाउंट में सिफन ऑफ करा कुछ पैसा, मान लो 1 लाख रुपए निकाल लिए उसके अकाउंट से, मैं अक्यूज़ हूँ, लेट अस जस्ट टेक दिस फॉर एन इंस्टेंस, और मैं अपने फ्रेंड के अकाउंट में फिर उसको ट्रांसफ़र करूँ, इससे पहले कि पुलिस उस चीज़ को फ्रीज़ करे या डिटेक्ट करे या अथॉरिटीज़ उसको डिटेक्ट करे या सिस्टम उस चीज़ को डिटेक्ट करे, ऐसे कर करके मैं कम से कम नहीं तो 25 लोगों में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो जब तक वो मेरे पास आ गए तो या किसी और 25वें व्यक्ति के पास जाएगा तो वो 25वां व्यक्ति विल बी कम्प्लीटली अनअवेयर कि अच्छा मेरे पास कहाँ से आया ये, कोई नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इस प्रकार की घटनाएं हो गई हैं और ये जजमेंट विच इज़ टाइटल्ड एज कॉमनली नोन एज द अब्दुल कलाम जजमेंट बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला would be provided in the description box as well। And in case people watching this particular video have additional queries or some doubts or some concerns regarding this particular aspect, rather I would say, or any other aspect, they may get in touch। Thank you। नमस्कार सभी को।